the heading of algebra of matrices. Okay, so students, come on, ready, quick. Maths 1 started today. It will go on very simple as compared to 11th standard. I'm seriously telling you, as compared to 11th standard maths, अपना 12th standard maths का, especially maths 1 is absolutely simple. The only thing that you have to do is that you have to attend all the lectures regularly. These online lectures, whatever going on, later on also when we start the classroom lectures, offline lectures, you will definitely come. I'm pretty sure about that. But these online lectures, yes, concentrate. Whatever important things we are discussing here, you are supposed to write them down. लिखने का एक नोटबुक, of course, जैसे हम लोग always करते हैं, मैथ्स 1 के लिए सेपरेट नोटबुक बनाना, मैथ्स 2 के लिए सेपरेट नोटबुक बनाना, तो हर एक टीचर का अलग-अलग इसमें हो जाएगा. So myself, Prashant sir, as you all know, we are starting with the topic of matrices. Now matrices is what? Basically, what is a matrix? Let us talk about what is a matrix. The name of the topic, come on, students, start writing. Matrices. Now you know, matrices is the plural of a matrix. One matrix and two or more matrices. Okay, two or more matrices. That is what is the thing. Okay. Now what is a matrix? Let us discuss a definition, the definition of a matrix. आराम से जाएंगे, slowly जाएंगे, सबको सब कुछ आराम से समझ में आ जाएगा. So don't worry about the things. Okay? Absolutely. Only thing is थोड़ा concentration level रखना. Whatever important things we are discussing, please, my request, please take them down in your book. बराबर से लिखो notebook में. Okay? बराबर से सब हो जाएगा. एकदम simple chapter है, डरने की कोई बात नहीं. All the chapters of Maths 1 are simple. Don't worry about it. Okay? Now we'll talk about matrices. Basically, it is an arrangement of numbers. You know what is arrangement? Arrangement of numbers. M into n numbers. We are going to arrange what? M into n numbers in m rows. Rows सबको मालूम है ना? Rows. Rows मालूम है? आड़वा आड़वा. आड़वा is rows like this. And n columns. Columns also everyone knows columns क्या होता है. Column मतलब उभा. Okay, vertical, horizontal and vertical. Okay, so horizontal m rows and n columns. Example देता हूँ तो तुम लोग को समझेगा. फटाफट मेरे साथ आराम से लिख लेना, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं. Okay, एकदम फर्स्ट क्लास जाएगा अपना चार्ट. Okay, suppose if I talk about the matrix in which 3 into 2, 6 numbers we are arranging. How many numbers? 6 numbers. Okay, 6 numbers. So they will be arranged in 3 rows and 2 columns. Okay, 3 rows and 2 columns like this. See, usually you know what we do. The matrices will be denoted by capital letters A, B, C, etc. And the elements of the matrix. Element मतलब क्या होता है रे? Element मतलब वो जो numbers होते हैं ना matrices में, उसको हम लोग ने गोंडस नाम दिया. क्या नाम दिया? Elements of the matrices. They will be denoted by small letters. समझ में आ रहा है सबको? Matrix will be denoted by capital letter. जैसे कि ये 3 into 2 वाला matrix है. मैंने बोला ना 3 rows है. Horizontal अड़वा कितना rows? 3. Columns 2 है मतलब 2 उभा. Okay, vertical. Like this. Any numbers can select 5 minus 2, 2, 3, 4, 1. Okay. Another matrix B I select, जिसमें suppose 2 into 2 मतलब कितना एलिमेंट हो गया? 4 एलिमेंट हो गया. 2 into 2 मतलब कितना एलिमेंट? 4 एलिमेंट. अभी 4 एलिमेंट है, उसको भी अरेंज कर सकते हैं वो 4 एलिमेंट को. Suppose 3 minus 1, 7, 4. Please take down everything like we used to do previously. सब कुछ नोटबुक में नोट डाउन करो. अभी क्या है कि अपने को 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम देने का है, तो ये जो भी नोटबुक्स हम लोग बनाएंगे, इसके लिए मैंने बोला कि एक मैथ्स 1 के लिए अलग से नोटबुक
बनाना, मैथ्स 2 का अलग से नोटबुक रहने। अभी मैथ्स का जो नोटबुक है उसमें लिखने को स्टार्ट करना, तो उसमें सब कुछ लिख देना, बिकॉज बाद में थोड़ा सा याद नहीं रहता अपने को, तो यू कैन रिफर टू द नोटबुक। एकदम परफेक्टली लिखा होगा तुम लोगों ने तो कुछ भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, एकदम आराम से, मतलब आराम से तुम लोग को समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया अपना 2 into 2 वाला मैट्रिक्स। अभी हम लोगों ने डिसाइड क्या किया मैं बता दूं। अभी ये जो है इसमें m रोज और n कॉलम्स है, राइट? तो मैं ऐसे बोलूंगा ये जो मैट्रिक्स है इट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज m into n। इसको बोलेंगे ऑर्डर, ये m into n है उसको क्या बोलेंगे ऑर्डर। ऑलवेज याद रखना ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स में m represents the number of the rows and n represents the number of the columns। समझा? number of rows and number of columns। m is वो जो horizontal होता है वो number of rows है, जो vertical होता है वो number of columns। तो m into n will be the order। So order of the matrix is what? m into n। समझ में आ गया सबको? Okay, so just to revise or recollect, what is the matrix? Come on, tell me, what is the matrix? Matrix matlab it is an arrangement of m into n numbers in n rows and n columns। समझा? m rows and n columns, ये एकदम मायने रखता है कितना rows है कितना columns है। Okay, now based on the values of m and n and based on the elements of the matrices, मैंने अभी बोला ना एलिमेंट्स, अंदर वाले जो नंबर्स है ब्रैकेट के अंदर, ऑलवेज रिमेंबर वी आर गोइंग टू यूज क्लोज्ड ब्रैकेट्स। वंस अपॉन अ टाइम व्हेन वी वर वेरी स्मॉल, याद है 11th स्टैंडर्ड के अपने लेक्चर्स, 11th स्टैंडर्ड में डिटरमिनेंट पढ़ाया था हम लोगों ने। डिटरमिनेंट में ओपन ब्रैकेट रहते थे, ऐसे ऐसे वाले ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। इधर ओपन ब्रैकेट नहीं, इधर कौन से ब्रैकेट रहेंगे? क्लोज्ड ब्रैकेट्स रहेंगे। सबको समझ में आ गया ना? क्लोज्ड ब्रैकेट्स में अरेंज किया नंबर्स तो m into n ऑर्डर वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा। समझा? मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n, again I am repeating, okay, an arrangement of m into n numbers in m rows and n columns is called as what? Come on, tell me, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n। समझ में आ गया? चलो अभी जरा आगे जाते, आराम से धीरे धीरे जाएंगे, सब कुछ समझ आते जाएगा। That won't be a problem at all, 101%। Okay, हाँ, now let's proceed further। Okay, सब लोगों ने लिख के लिया ना ये? जाओ ना आगे। Okay, चलो। Now we are talking about the next thing। Come on, give the heading। लिखने का सब लोगों, हाँ लिखो लिखो, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके, हाँ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में अभी बात करने जा रहे हैं हम लोग। ओके, हाँ अभी देख टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एकदम सिंपल, आराम से वन बाय वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देखो अपना जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है उसमें एकदम अच्छे प्रॉब्लम्स दिए। अभी ये जो अपना मैट्रिसेस चैप्टर है उसमें भी एक्सरसाइज, सेकंड चैप्टर है टेक्स्ट बुक में, मैथ्स 1 के टेक्स्ट बुक में कौन सा चैप्टर है? सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में 2.1 2.2। टुडे वी आर प्लानिंग टू डिस्कस प्रॉब्लम्स फ्रॉम दोस इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम दोस एक्सरसाइजेस 2.1 2.2। जब भी मैं वो प्रॉब्लम्स लूंगा तो मैं वो तुम लोगों को बोलूंगा कि कौन सा एक्सरसाइज देखने का वगैरह सब बोलूंगा। डोंट वरी अबाउट, एवरीथिंग विल बी डन प्रॉपर्ली। हाँ, नाउ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एक एक करके जाएंगे। पहला टाइप लिखना सब लोग, रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। रो एंड कॉलम मैट्रिक्स, ये अपना पहला नाम है टाइप का। एज द वेरी नेम सजेस्ट, नाम से ही पता चलता है, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। Row matrix is a matrix having only one row and column matrix is a matrix having only one column। तो जो मैट्रिक्स में एक ही रो रहेगा, रो अभी मालूम हो गया ना सबको? रो मतलब ऐसा हॉरिजॉन्टल, आड़वा, कन्नड़ में हम लोग उसको आड़वा बोलते हैं, उभा मतलब वर्टिकल, कॉलम्स। ओके, तो ओनली वन रो रहेगा। मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल
सपोज लिया A 5 -1 2, ओके। अभी एक ही रो है ना इसमें। स्टूडेंट्स मेरे को एक बात बताना तुम लोग, इसमें एक ही रो है बराबर, लेकिन 3 कॉलम्स हैं, 1 रो एंड 3 कॉलम्स। अब 1 रो एंड 3 कॉलम मतलब इसका m आएगा, m का वैल्यू है 1 और n का वैल्यू क्या है 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 1 into 3, 1 row and 3 columns, correct? 1 row and 3 columns. Order of the matrix will be 1 into 3. Normally ये जो ऑर्डर है ये इधर नीचे मेंशन किया तो चलेगा, राइट हैंड बॉटम कॉर्नर में ऐसे इधर मेंशन किया 1 into 3, तो समझते हैं इसका ऑर्डर क्या है 1 into 3. When the order is 1 into 3, कितना रोज और कितना कॉलम्स रहेगा, बोलो बोलो सब लोग, 1 रो एंड 3 कॉलम्स। समझ में आ रहा है? ये हो गया अपना रो मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया, करेक्ट? रो मैट्रिक्स का एग्जांपल। अभी कॉलम मैट्रिक्स के एग्जांपल में लेने जा रहा हूं, ओके? कॉलम मैट्रिक्स समझना सब लोग, कॉलम मैट्रिक्स, ओके? कॉलम मैट्रिक्स में क्या, एक ही कॉलम ना रहे, एक ही कॉलम, सपोज कैपिटल P 1 - 2। चलो सब लोग मेरे को बताना अभी कितना रोज है इधर, रोज मतलब ऐसा ना हॉरिजॉन्टल, तो देयर आर 2 rows, correct? And there is only 1 column, 2 into 1. So what will be the order of this matrix? Come on, tell me. Order will be 2 into 1, 2 rows and 1 column. Getting it everyone? So this is the example of column matrix. So that was our first type, row and column matrix. Row matrix मतलब matrix having only 1 row, और column matrix मतलब matrix having only 1 column. समझ में आ रहा है सबको? Row matrix, column matrix, done? Should I proceed further? Yes. Row matrix हो गया, column matrix हो गया, तुम लोगों ने लिख भी लिया examples वगैरह, okay? Let's go for the next. Second type अभी लिख लेंगे सब लोग। हाँ, सेकेंड टाइप जो है उसका नाम ऐसा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी हम लोगों ने स्कूल में ज्योमेट्री तो पढ़ा था, सबको मालूम है रेक्टेंगल क्या होता है, जिसमें लेंथ एंड ब्रेड्थ अलग अलग होते हैं, उसको बोलते हैं क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो इधर भी नंबर ऑफ रोज लेंथ जैसा है, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर अलग अलग रहेंगे तो समझने का वो कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो अपने को मालूम है m into n ऑर्डर रहता है ना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी रहेगा when m is not equal to n। समझ में आ रहा है ना, m is not equal to n मतलब what, number of rows and number of columns are different, जैसे कि 3 into 2 या 2 into 3। मैं इधर लिखता हूं, हाँ एक मैट्रिक्स लिखा 3 into 2 वाला, 3 रोज, 3 - 1 2 4 1 7, ये अपना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। और एक मैट्रिक्स ये साइड में लिख रहा हूं, Q सपोज, ओके 2 into 3 मतलब 2 रोज, ओके लाइक दिस 5 - 1 3 1 4 11, ये भी अपना इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 into 3। सो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर अलग अलग रहेंगे तो उसको बोलेंगे क्या, बोलो सब लोग, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल सबको मालूम है, लिख लिया सब लोगों ने। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, m into n ऑर्डर, m is not equal to n, number of rows and number of columns are different, getting it or not? Let's go for square matrix now. स्क्वायर क्या होता है, चलो चलो बोलो मेरे को, कभी भी ज्योमेट्री में पढ़ा था, स्क्वायर क्या होता था, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी व्हाट, इक्वल, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम रहता है ना, चारों साइड सेम रहता है, मतलब नंबर ऑफ रोज इधर कैसे लिखूंगा m into n है, लेकिन कंडीशन क्या है, m is equal to n। समझ में आ गया, m is equal to n मतलब
उसका ऑर्डर सपोज 2 into 2 रहेगा या फिर 3 into 3 रहेगा। 2 into 2 वाला एक मैट्रिक्स बता रहा हूं, 5 minus 1 2 4। ओके, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। स्टूडेंट्स कम ऑन टेल मी व्हाई इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स? बिकॉज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। समझ में आ गया? जैसे इधर ये 3 into 3 वाला है, r is equal 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझा सबको? तो ये 3 into 3 वाला मैट्रिक्स हो गया। 3 into 3, number of rows, number of columns are equal. So what type of matrix this is? Come on, tell me. It is square matrix. So just to revise or recollect, rectangular matrix में number of rows और number of columns different होते हैं। M is not equal to N. Square matrix on the other hand कैसा होता है? Number of rows and number of columns are equal. M is equal to N. लिखा सबने विथ एग्जांपल। रेक्टेंगुलर का दो एग्जांपल दिया मैंने, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स क्यू। स्क्वायर मैट्रिक्स का भी मैंने एग्जांपल दिया, मैट्रिक्स सी एंड मैट्रिक्स आर। समझ में आ रहा है सबको? हो गया? अच्छा, बराबर। ओके, शुड वी प्रोसीड नाउ? वेरी गुड, आई विल प्रोसीड फर्दर। टाइप नंबर 3 अभी जो ना हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या मालूम? टाइप नंबर 3। इसका एकदम अच्छा सा और एकदम आराम से समझ में आने वाला नाम है, उसका नाम है जीरो मैट्रिक्स। क्या नाम? बोलो बोलो। जीरो मैट्रिक्स। अभी जीरो मैट्रिक्स ये नाम से आपको पता चल रहा है कि जो मैट्रिक्स में ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड एज व्हाट मैट्रिक्स? जीरो मैट्रिक्स। ओके, तो लिख लेना सब लोग, अच्छी तरह से याद रखने का। सब लोग बराबर से लिख लो, घर जाके जरा रिवाइज करना टिल आवर नेक्स्ट लेक्चर, वो रिवाइज करके आना। जो भी थोड़ा बहुत मैं होमवर्क के लिए मार्क करूंगा प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम भी तुम लोग तो मेरे को तो मालूम, तुम लोग तो एकदम होमवर्क करने में एकदम फेमस। कभी भी होमवर्क दिया तुम लोग डेफिनेटली करके आते थे। इतना मेरे को विश्वास हो गया था तुम लोगों में कि जैसे से एट रैंडम चेक किया तो तुम लोगों को मालूम था। तो अभी इसमें you see we are doing this year is very important for us, 12th standard बोर्ड एग्जाम देने वाले। इसके लिए जो भी अपने को होमवर्क मिलेगा, in your interest you are supposed to do the homework सेम नोटबुक में करना, अलग नोटबुक बनाने का जरूरत नहीं। सेम नोटबुक में होमवर्क कर लेना। ओके, और होमवर्क बराबर से हो जाएगा। इतना सिंपल प्रॉब्लम देगा। मैं ना होमवर्क में ऐसा प्रॉब्लम दूंगा जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो इसमें डाउट आने का भी चांसेस बहुत कम है। ओके, तो चलो नेक्स्ट टाइप हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, जीरो मैट्रिक्स, या फिर उसको एक और एक नाम दिया नल मैट्रिक्स। क्या नाम दिया? नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स लिख लेना, ऑल एलिमेंट्स जीरो। ओके, और ये जो और एक है, ये जो जीरो मैट्रिक्स है, इट विल बी डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर O। इट इज नॉट जीरो, इट इज कैपिटल लेटर व्हाट? O। अभी देखा, एक मजाक बताता हूं तुम लोग। मैंने अगर लिखा O2 into 3, मतलब क्या है? जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 3। समझा? अभी बोलना सब लोग, 2 rows and 3 columns, मतलब ये ऐसे आएगा ना, 0 0 0 0 0 0। अगर किसी ने मेरे को पूछा सर O3 into 3 क्या होगा? चलो तुम लोग ही बताना, O3 into 3 मतलब क्या होगा? बोलो बोलो। O3 into 3 मतलब what? 3 rows and 3 columns. 9 elements will be there. Number of elements, 2 3s are 6 elements, 3 3s are 9 elements. सभी एलिमेंट जब जीरो रहेंगे तो उसको बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3। समझ में आ गया सबको? नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स समझ में आ रहा है ना सबको? ओके, लिख लो सब लोग, बराबर से लिख लो। नोटबुक में प्रॉपर नोटबुक बनाना, मैं रिक्वेस्ट ऑल माय गुड स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट्स आर गुड। ओके, तो बराबर से लिख लेना सब लोग, सेपरेट नोटबुक बनाना, रिवाइज करना। ओके, नेक्स्ट लेक्चर तक रिवाइज करके आने का। ओके, डन? ओके ओके, डन, वेरी गुड वेरी गुड।
लेट्स प्रोसीड नाउ। जीरो मैट्रिक्स हो गया। अभी ना हम लोग एक आइडिया करने जा रहे हैं, एक गम्मत बताता हूं तेरे को। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में जानना सब लोगों ने। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है बताना। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब व्हाट, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स रहेगा, तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट। ओके, अब ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग बोलने जा रहे हैं, हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स में, हाँ बराबर, m into n, परफेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, फटाफट आंसर आ रहे हैं, मैं इतना खुश हो रहा हूं ना, फटाफट। ये देखो क्या बोल रहे हैं लोग, हाँ, नोटबुक बनानी है, करेक्ट करेक्ट, हर एक सर का नोटबुक बनाने का। ओके, संदीप सर के लिए अलग नोटबुक, मेरे लिए अलग नोटबुक। हाँ चलो, अभी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ना, उसके इंपॉर्टेंट स्पेशल टाइप्स देखने जा रहे हैं हम। तो नाम देना इधर, ऐसा ऊपर नाम देना, स्पेशल टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब जब m into n रहेगा तो स्पेशल टाइप उसका देने जा रहे हैं हम, स्पेशल टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी इसमें पहला जो टाइप है उसको मैं नाम देने वाला हूं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बराबर से लिख लेना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मेरा हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है ना सबको? आना ही चाहिए, बेस्ट हैंडराइटिंग इन मुंबई। ओके, आना ही चाहिए। ओके, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अभी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैंने अभी बताया, दीज आर स्पेशल टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऐसे होता है, लिखो सब लोग लिखो, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सब लोग बराबर लिखना, it is a square matrix in which all the elements below the diagonal, all the elements below the diagonal are zero। तो देखो कैसे उल्टा है, देखो नाम है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लेकिन डायगोनल के नीचे वाला सभी एलिमेंट जीरो मांगता है। अब इसके लिए ना मेरे को पहले डायगोनल के बारे में बताना पड़ेगा, एक मिनट है। दो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में लिखने जा रहा हूं, एक है ए और दूसरा है बी। अब याद है स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा था, स्क्वायर रहता था स्क्वायर, उसको दो डायगोनल रहते थे ना, कौन सा भी क्वाड्रिलैटरल रहेगा, चौकोन बोलते थे उसको मराठी में। ओके, उसको ऐसा दो डायगोनल रहता था, लेकिन मैट्रिसेस में ये वाला डायगोनल लेने का नहीं है, सिर्फ ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट आने वाला जो है ना, उसी को हम लोग डायगोनल बोलने वाले हैं। तो इधर डायगोनल में डायगोनल कौन सा रहेगा, ये रहेगा, इधर डायगोनल कौन सा रहेगा, ये रहेगा। आर यू गेटिंग इट? सब लोगों को पता चल रहा है ना? ओके, ब्लर आया, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, ठीक है ठीक है, हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ओके, डोंट वरी। हाँ, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स है। सपोज ये स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब ये सपोज 2 into 2 वाला मैट्रिक्स है। 2 into 2 मतलब क्या है बता? 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, करेक्ट। इसको बोलते हैं 2 into 2 मैट्रिक्स। तो हमने क्या बोला, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन व्हिच ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर जीरो। ये डायगोनल है बराबर बच्चों, स्टूडेंट्स, ये डायगोनल है, उसके नीचे वाला एलिमेंट जीरो मांगता है। ये 3 into 3 वाला लिया मैंने, तो इसके नीचे वाला एलिमेंट जीरो मांगता है। डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट जीरो रहेगा तो उसको नाम क्या दिया हम लोगों ने, क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है तुम लोगों से कि सर ये जीरो हो गया, बाकी के एलिमेंट क्या? नो कंडीशन, बाकी के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, एब्सोल्युटली नो कंडीशन। बाकी के एलिमेंट कुछ भी जीरो हो सकते हैं, जीरो नहीं भी हो सकते। 5 2 इधर, ओके 7। चलिए, ये एलिमेंट जीरो मांगता है, डायगोनल के नीचे वाला जो एलिमेंट है ना वो जीरो। इधर ये 3 जीरो है, ये जीरो रहेंगे या नहीं भी रहेंगे, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो समझ में आ गया? इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन व्हिच ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर जीरो। बाकी के एलिमेंट कुछ भी हो, कुछ भी मानना नहीं। ओके, समझ में आ रहा है सबको? बराबर से लिख लेना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के दो एग्जांपल दे दिया मैंने,
लिखा सबने? ए है, इसमें बिलो द डायगोनल 0, इसमें भी बिलो द डायगोनल 0, डायगोनल में या अबव द डायगोनल में 0 रहेगा नहीं रहेगा, डजंट मेक एनी डिफरेंस। समझ में आ गया? ऑल डन, वेरी गुड दीपेश, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट थिंग नाउ। ओके, सेकंड वन, स्क्वायर मैट्रिसेस के स्पेशल टाइप डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। उसमें सेकंड टाइप लिखना सब लोग, फटाफट लिखना, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी तुम लोग इतने होशियार इंटेलिजेंट लोगों में मालूम है, अगर अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल के नीचे वाले 0 होते थे, तो बोलो जरा लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा? परफेक्ट, लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट 0 रहेंगे। समझ में आ गया? ऑल अपर, वेरी गुड। श्रवण पाटिल बोल रहा है ऑल अपर, वेरी गुड, मजा आ रहा है पढ़ाने को। ए ओके, 2 into 2 वाला ये अपना, ये 0 रहेगा, बाकी वाले कुछ भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और बी 3 into 3 वाला वंस अगेन, ये अपना अपर एलिमेंट 0 रहना मांगता है, बाकी 0 रहेंगे नहीं रहेंगे, चिंता करने वाली बात नहीं। समझा सबको? ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऑल द एलिमेंट्स अबव द डायगोनल आर 0, बराबर उल्टा। अपर ट्रायंगुलर बिलो द डायगोनल, लोअर ट्रायंगुलर क्या बोलो? अपर अबव द डायगोनल। समझ में आ गया? 0 आ गया तो उसको नाम दिया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सब लोग बराबर से लिखो बाबा। हाँ, फटाफट बराबर से लिख लेना। ओके, सब इधर बराबर से दिख रहे, थोड़ा सा ब्लर दिखा था बीच में, अभी सब परफेक्ट दिख रहा है। आई एम प्रोसीडिंग फर्दर। ओके, लेट्स गो टू द थर्ड स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, थर्ड स्पेशल टाइप, हाँ, थर्ड टाइप का नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स। अभी डायगोनल मैट्रिक्स का क्या है बताता हूं, लिख लेना सब लोग। स्क्वायर मैट्रिक्स है where all the non-diagonal elements are 0, all the non-diagonal elements are 0। ये मतलब क्या है? नॉन डायगोनल एलिमेंट मतलब व्हाट? अदर देन डायगोनल, अपर, अबव द डायगोनल, बिलो द डायगोनल, सब 0 रहेंगे तो उसको नाम क्या दिया? बोलो, नाम क्या दिया? डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा नाम दिया है। ओके, एग्जांपल देता हूं, एक 2 into 2 वाला दूंगा, ये अपना डायगोनल है, बराबर। इसके अबव वाला भी 0, बिलो वाला भी 0। समझा? डायगोनल में कुछ भी हुआ चलेगा, 5 0, नो प्रॉब्लम। और एक एग्जांपल देने जा रहा हूं 3 into 3 वाला। ओके, 3 into 3 वाला है, above the diagonal 0, below the diagonal 0, diagonal element may or may not be 0। समझ में आ गया? इसका मतलब ऐसे नहीं लगता कि डायगोनल मैट्रिक्स इज लोअर ट्रायंगुलर एज वेल एज अपर ट्रायंगुलर। समझ में आ गया क्या? लोअर ट्रायंगुलर भी होता है और अपर ट्रायंगुलर भी होता है, उसको अब हम लोग नाम क्या देंगे? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ऑल द, इसको ना ऐसे बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मतलब क्या? ये डायगोनल एलिमेंट्स, करेक्ट? ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ये नॉन डायगोनल। ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ये डायगोनल में, ये नॉन डायगोनल। हम लोगों ने बोला था ना कि ये सिर्फ ऐसा वाला डायगोनल कंसीडर करने का है, वो ऊपर जाने वाला नहीं। समझ में आ रहा है सबको? तो ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। अभी आगे लेट्स प्रोसीड फर्दर। टाइप नंबर कौन सा है? स्पेशल टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस में अभी टाइप नंबर कौन सा लेने जा रहे हैं हम लोग? टाइप नंबर 4। लिखना स्केलर मैट्रिक्स। इसका नाम क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। ओके, स्केलर मैट्रिक्स। ओके, स्केलर मैट्रिक्स। अभी स्केलर मैट्रिक्स क्या है मैं बता। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स
इन विच, सब लोग लिख लेना, हाँ तुम लोग तो मेरे से भी फास्ट लिखते हो, मेरे को मालूम है। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, all non-diagonal elements are zero and diagonal elements are identical. Diagonal elements are identical. Identical मतलब सेम। अभी देखो एग्जांपल में दे रहा हूं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का जो स्केलर मैट्रिक्स है, सब लोग बराबर देखना, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, 5 5 डायगोनल में सेम एलिमेंट आइडेंटिकल और नॉन डायगोनल में 0 बनता है। इधर बोलो -2 -2 -2, डायगोनल एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर व्हाट, 0। समझ में आ रहा है सबको? So it is a square matrix, scalar matrix, very important type of this thing, अपना square matrix है, okay, scalar matrix, square matrix in which all the non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are what? Come on, tell me. Diagonal elements are identical. समझ में आ रहा है? समझाना सबको? एग्जाम्पल लिख लिया, मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B। समझ में आ रहा है ना? एकदम मस्त, एकदम सिंपल सिंपल चैप्टर है। ओके, सब समझाना? यस, वेरी गुड। ओके, आई एम वेरी हैप्पी स्टूडेंट्स आर टेकिंग इंटरेस्ट। Okay, come on, let us go ahead with the chapter. Square matrix हो गया। अभी ना और एक, हाँ योगेश जी, ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अरे वाह, घर में पढ़ के आए लगता है सब लोग। खुशी सिंह, यस यस, ऑल डन ना, वेरी गुड। ओके, लेट्स प्रोसीड नाउ। हाँ, तो ये प्रोसीड होने से पहले और एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि स्केलर मैट्रिक्स है ना, उसमें मैंने क्या बोला कि आइडेंटिकल मांगते हैं, पर ऐसे लगता कि स्केलर मैट्रिक्स में दोनों एलिमेंट 1 में हो सकते हैं, सभी एलिमेंट इधर भी 1 1, जैसे कि इधर मैंने किया, ये 1 किया, ये 1 किया, ये भी 1 किया। ओके, सपोज मैंने ऐसे किया, थोड़ा सा स्पेशल टाइप उसमें भी ले लिया, 1 किया, तो उसको हम लोगों ने नाम क्या दिया मालूम? सब लोग लिख लेना, सब लोग लिख लेना रे बाबू। ओके, नंबर 5, इसको नाम दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मतलब 1, यूनिटी मतलब 1। ओके, तो क्या है, इसको ना मैं बोलूंगा, ये जो मैट्रिक्स है ना, नॉर्मली आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल I. Square matrix in which all the non-diagonal elements are 0, all the diagonal elements are what? 1. 1 समझ गया ना? 1 स्केलर मैट्रिक्स में कैसा 5 5 5 भी चलता था, अभी 5 5 5 में 1 नहीं मांगता है, 1 डायगोनल में 1 और नॉन डायगोनल में 0। उसको ना, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, ये डिनोट करेंगे हम लोग बाय द लेटर कैपिटल I। तो ये अपना I2 होगा। I2 मतलब व्हाट? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2, I2, 2 मतलब 2 into 2। इस स्क्वायर मैट्रिक्स में मैंने ऐसे बोला, सपोज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो तुम लोग पहचान जाओगे कि उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 into 3। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बोला, तो उसका ऑर्डर क्या रहेगा, 2 into 2। वैसे ये जो मैट्रिक्स है, ये जो I3 है, I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3। ओके, 3 रोज और 3 कॉलम। तो समझा सबको आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स? समझा क्या? स्केलर मैट्रिक्स का स्पेशल टाइप है ये। ओके, स्केलर मैट्रिक्स का स्पेशल टाइप आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all the non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are what? 1। समझ में आ रहा है ना? यस, वेरी गुड। I2 हो गया, I3। अभी हम लोग आगे जाने वाले हैं। ओके, तो अभी और एक कंसेप्ट योगेश शर्मा जी बता रहे इधर, इसमें अभी डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में बताना चाहिए। वेरी गुड। ओके, तो अभी ना नेक्स्ट स्पेशल टाइप लेने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं।
जो अपना जो डिटर्मिनेंट चैप्टर था ना लास्ट ईयर का, उस पे बेस्ड लिखना, सब लोग लिखना। ये टाइप ऑफ मैट्रिसेस नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट थिंग बताने जा रहा हूं। बेस्ड ऑन दैट और एक टाइप इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं हम, लिखना सब लोग, लिखना। डिटर्मिनेंट ऑफ, लिखो लिखो, डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी सबको डेफिनेटली याद है, लास्ट ईयर पढ़ा था तुम लोगों ने, कि तुम लोगों का फेवरेट चैप्टर हुआ करता था डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ऑलवेज इक्वली होते हैं। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, अभी ये क्या है बताने जा रहे हैं, दो एग्जांपल लेता हूं और बताता हूं। लिसन टू मी केयरफुली। मैट्रिक्स ए लिया 2 3 4 7, another matrix B, okay, 1 4 3 1 2 1 -1 3 0। अभी हम लोग बताने जा रहे हैं, जरा कॉन्सेंट्रेट करना। कॉन्सेंट्रेट मतलब जो लास्ट ईयर का जो चैप्टर था डिटरमिनेंट, उसका थोड़ा सा रिवीजन हो। ओके, अभी ना मैं डिटरमिनेंट ए निकालने जा रहा हूं। डिटरमिनेंट ए देखो कैसे लिखते हैं हम लोग। डिटरमिनेंट ए लिखने का तरीका देखो रे, डिटरमिनेंट जैसा लिखना है, डिटरमिनेंट ए मतलब डिटरमिनेंट फॉर मैट्रिक्स ए। वी कैन हैव अ डिटरमिनेंट, सब लोग याद रखना, वी कैन हैव अ डिटरमिनेंट ओनली फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होता है ना, 3 रो 2 कॉलम वाला, उसका डिटरमिनेंट होने का चांस ही नहीं, क्योंकि डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम रहना जरूरी है कि नहीं, समझा सबको? तो चलो ये डिटरमिनेंट ए निकलेगा, कैसे आएगा देख, डिटरमिनेंट 2 3 4 7। याद है ये जो डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 वाला कल जो था, स्कूल में भी था यार, 10th स्टैंडर्ड में याद है, एक साइमल्टेनियस इक्वेशन करके एक चैप्टर हुआ करता था, चैप्टर नंबर 3 है सपोज, उसमें ये डिटरमिनेंट तुम लोग इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। ओके, तो क्या करते हैं, ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, याद है ना सबको, 2 into 7 minus 4 into 3, ऐसे पहले मल्टीप्लाई करने का माइनस साइन बीच में और बाद में ऐसे मल्टीप्लाई, तो 14 minus 12, आंसर क्या आया 2। हाँ, ये जरा देखना पड़ेगा रे बाबा, 3 into 3 वाला जो मैट्रिक्स है उसका अगर डिटरमिनेंट निकालने जा रहे हैं हम लोग, डिटरमिनेंट बी, तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। डिटरमिनेंट 1 4 3 सबको याद है ऑफकोर्स, डिटरमिनेंट चैप्टर का ऐसे चांस ही नहीं है कि किसी ने ऑप्शन में छोड़ा होगा, चांस ही नहीं, एकदम सिंपल चैप्टर था, उसके बेसिस पे आराम से मार्क्स मिला करते। 1 4 3 1 2 1 -1 3 0। अब ये डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 कैसे सॉल्व करते थे हम लोग, जरा मैं बताता हूं। देखिए पहले ये 1 लेंगे, ओके, फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे। 1 लिया तो सब लोग ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना बराबर से। 1 लिया तो 1 का रो और 1 का कॉलम छोड़ देने, 1 का रो 1 का कॉलम छोड़ दिया तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे ना, 4 एलिमेंट बचेंगे ना रे बाबा, उसका एक छोटा सा डिटरमिनेंट बनाने का है, समझा सबको? बाद में ये मिडिल वाला एलिमेंट, याद है सबको, मिडिल वाले एलिमेंट के क्या करते थे हम लोग, साइन चेंज करते थे। साइन चेंज करते थे मतलब व्हाट, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि माइनस लेने का, मैं बोला साइन चेंज करने, प्लस रहेगा तो माइनस आएगा, माइनस रहेगा तो प्लस होगा। ओके, तो प्लस का माइनस, तो -4 का रो 4 का कॉलम छोड़ दिया, क्या आएगा बोल, 1 1 -1 0। समझ में आ रहा है सबको? डेफिनेटली समझ में आ रहा है ना, लिख रहे हैं ना सब लोग? अभी नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे वंस अगेन, उसका साइन चेंज भी कुछ करने का नहीं है, 3 का 3 रहेगा। क्या करेंगे सब लोग बताना, 3 का रो और 3 का कॉलम छोड़ देने का, बराबर। 3 का रो 4 का छोड़ा तो अपने को 1 1 -1 0 मिलेगा, 3 का रो 3 का कॉलम छोड़ा तो क्या मिलेगा, बोलो बोलो बोलो, 1 2 -1 3, 1 2 -1 3। समझ में आ गया? Once again I am explaining for the benefit of all my students. Okay, इधर से स्टार्ट करने का, 1 का रो 1 का कॉलम छोड़ा, ये एलिमेंट मिल गया। बाद में ये
4 साइन चेंज करने का, साइन चेंज किया, ये आ गया -4। ओके, 4 का रो 4 का कॉलम छोड़ दिया। ओके, क्या आया 1 1 -1 0। बाद में आगे जाने का, आगे वाले एलिमेंट का साइन चेंज करने का नहीं, साइन इज टू बी चेंज्ड ओनली फॉर द मिडिल एलिमेंट। समझा? अभी 3 का रो 3 का कॉलम छोड़ दिया तो क्या आएगा? बोलो बोलो 1 2 -1 3। अभी जरा डायरेक्टली 1, ओके 1 इनटू क्या आएगा? बोलो 2 इनटू 0 इज 0 माइनस 3 इनटू 1 इज 3। बराबर से लिख लेना, मेरे साथ में लिखना, समझ के -4। अभी क्या है? 1 इनटू 0 इज 0 माइनस, इसमें गड़बड़ मत करना, गोंधल मत करना, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस प्लस 3। अब ये क्या है? बोल 1 3 जा 3, अगेन माइनस माइनस प्लस 2। समझा क्या? सबको मालूम है, फिर भी आराम से जा रहे हैं हम लोग। ओके, रिकलेक्ट करने का 4-5 महीना हो गया डिटरमिनेंट्स पढ़ के, बराबर ना? यस, यश बोल रहा है, यस बराबर से आ रहा है, वेरी गुड। ओके, अब ये -3 है, 0 माइनस 3 मतलब -3, ये -4 into 1 मतलब -4, और ये 5 3 15। ओके, तो 15 minus 7, आंसर क्या आएगा? 8। समझा सबको कंसेप्ट? कंसेप्ट का नाम क्या है? सब लोग बोलो, डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियरली बोला, you can have a determinant only for a square matrix, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम रहना है। और डिटरमिनेंट कैसे निकालने का? आइदर 2 into 2 वाला डिटरमिनेंट निकालना पड़ सकता है, या फिर 3 into 3 वाला डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालने का अभी हम लोगों ने देखा। 1 से स्टार्ट, बाद में -4, बाद में 3। समझ में आ रहा है ना सबको? जाओ आगे। यस, नाउ बेस्ड ऑन दिस, ओके, अभी बेस्ड ऑन दिस हम लोग आगे जाएंगे, नाम इंट्रोड्यूस करेंगे, टाइप इंट्रोड्यूस करेंगे। सब लोग लिखना, ये अपना टाइप नंबर 5 हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप नंबर 5। यस, इसमें लिखना सिंगुलर and non-singular matrix। सिंगुलर एंड नॉन-सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, जरा ध्यान देना सब लोग। सिंगुलर एंड नॉन-सिंगुलर, पहले मैं सिंगुलर मैट्रिक्स का के लिए बोलता हूं, स्मॉल a लिखा मैंने। सिंगुलर क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स capital A where determinant A is equal to 0 is called as what matrix? Singular matrix। अभी हमने देखा ना डिटरमिनेंट कैसे निकालेगा। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आया तो समझने का वो कौन सा मैट्रिक्स है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, और अगर ऐसे हुआ, स्मॉल b लेके जा रहे हैं हम लोग, square matrix A where determinant A is not equal to 0 is called as what matrix? You know, non-singular matrix। समझा सबको? सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अभी ना हम लोग एक आइडिया करेंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज स्टार्ट ही कर देते हैं। तो प्लीज शो ऑन द, प्लीज शो 2.1, एक्सरसाइज 2.1 करने जा रहे हैं अभी सब लोग। दीपेश क्या बोल रहा है? हाँ, टाइप नंबर 6 है क्या? ठीक है, चलिए। हाँ, तो अभी सिंगुलर नॉन सिंगुलर पे बेस्ड हम लोग एक्सरसाइज 2.1 में से सम एग्जांपल्स वी आर गोइंग टू डू। तो सब लोग एक्सरसाइज 2.1 पे जाने का है सब लोग। ओके, एक्सरसाइज 2.1, हाँ राइट, वेरी गुड। 2.1 का एग्जांपल नंबर 3 and 4 मैं पहले करने जा रहा हूं। एग्जांपल नंबर्स 3
and 4 of 2.1. देखो 2.1 दिखा है उधर, हाँ 2.1 सब लोग देख लेना। 2.1 का कौन सा एग्जाम्पल करने जा रहे हैं हम लोग? एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर व्हाट 4। ओके, एग्जाम्पल 3 मैं जरा पढ़ता हूं, तुम लोग भी जरा पढ़ना। ओके, क्या है? व्हाट दे आर सेइंग, क्लासिफाई each of the following matrices। अभी ना एग्जाम्पल नंबर 3 पे, हाँ, which of the matrices are singular and non singular। चलो सब लोग एक बार रिवाइज कर ले। सिंगुलर कभी बोलने का, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आया तो सिंगुलर, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आया तो नॉन सिंगुलर। चलो उधर 4 ही तो छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए, फटाफट कर देते हैं, सब लोग लिखने को स्टार्ट करना रे। एक्सरसाइज 2.1 का थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड का फर्स्ट वन। ओके, मैट्रिक्स दे दिया, उसको ए बोलेंगे, कैपिटल ए बोलो। क्या है सब लोग लिखो, ए बी सी पी क्यू आर, और क्या है 2a माइनस पी 2b माइनस क्यू एंड 2c माइनस आर। ये मैट्रिक्स दिया, सब लोग लिखना। एक्सरसाइज 2.1 का कौन से एग्जाम्पल के बारे में बात करें हम लोग? कम ऑन टेल मी। ए, थर्ड का फर्स्ट मैट्रिक्स ए। हाँ, अभी जैसे मैंने बताया हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ए का वैल्यू निकालेंगे। जब सब लोग लिखने को स्टार्ट करना रे, डिटरमिनेंट ए का वैल्यू निकालेंगे, बराबर। अगर डिटरमिनेंट ए का वैल्यू 0 आया तो उसको बोलने का सिंगुलर मैट्रिक्स, 0 नहीं आया तो उसको बोलने का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है? चलो लिख लेते हैं डिटरमिनेंट ए, सब लोग तैयार है ना? ए बी सी पी क्यू आर 2a minus p 2b minus q and 2c minus r। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, अभी ना इसमें आइडिया करें, अब ये सॉल्व करना सबको। अभी अभी मैंने बताया 3 into 3 वाला मैट्रिक्स कैसे सॉल्व, लेकिन सबको याद रहेगा लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में डिटरमिनेंट चैप्टर में देयर वर सम प्रॉपर्टीज। See, many of the colleges they don't include properties of determinant in the syllabus। That's why properties के बारे में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन प्रॉपर्टीज मैं बताऊं, मैं प्रॉपर्टीज यूज करे जा अभी ना, इधर आइडिया करिए। ये फर्स्ट रो दिखाई दे रहा है, मैं ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। किससे? 2 से, बिकॉज ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? सब लोग बोलना 2a 2b 2c, ऐसे आएगा कि नहीं? लेकिन 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। बाहर 2 से डिवाइड करेंगे, अंदर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो अलाउड है 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। सिंपल अलजेब्रा में हम लोग करते हैं ना, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई, वैसे। ओके, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई, p q r 2a minus p 2b minus q 2c minus r। समझा सबको? समझ में आ रहा है ना क्या क्या? अभी तुम लोग पूछेंगे, पूछना चाहिए तुम लोगों ने कि ऐसे क्यों किया सर। मैं बता, एक्चुअली क्या है मालूम, ऐसे भी डायरेक्टली में सॉल्व कर सकता था, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाता था, कंफ्यूजिंग कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था कैलकुलेशन। इसके लिए हम लोग ये प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। अभी देख, ये इसको बोलते हैं R1, फर्स्ट रो को बोलते हैं R1, सेकंड रो को बोलते हैं R2, थर्ड रो को बोलते हैं R3। अभी अलाउड है, ये प्रॉपर्टी भी अलाउड है। मैं ना अभी R1 माइनस R2 करने जा रहा हूं, सब लोग लिखना रे, R1 माइनस R2 करेंगे। R1 को चेंज करने को अलाउड है। R1 माइनस R2 मतलब फर्स्ट रो में से सेकंड रो का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, आई रिपीट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करने का। तो बोलेंगे क्या आता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करने का मतलब क्या आता है? बोलो बोलो बोलो। 2a माइनस p 2b minus q 2c minus r, और ये क्या है? p q r, वैसे का वैसे रहा। 2a minus p 2b minus q 2c minus r, वैसे का वैसे। समझा? एकदम मस्त, एकदम क्विक मेथड बता रहा हूं तुमको। ये हो गया, लिखा सकते हैं। अभी आगे जाते हैं। कैन यू, ये 1/2 है। अब अभी देखिए
फर्स्ट रो एंड थर्ड रो सेम आ गया ना अभी। देखो 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 सब लोग 2a minus p 2b minus q 2c minus r 2a minus p 2b minus q 2c minus r r1 equal to r2 आया। ऐसे लिखने का ये भी प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी है। as r1 is equal to r2 डिटरमिनेंट a का वैल्यू क्या आएगा मालूम? 0 आएगा, मतलब हाफ इनटू 0। आंसर क्या आने वाला है? 0। कभी भी एनी टू रोज या एनी टू कॉलम्स आइडेंटिकल रहेंगे। आइडेंटिकल समझते हो ना? आइडेंटिकल मतलब व्हाट? सेम, सब एलिमेंट सेम। ओके, r1 इज इक्वल टू r3 है इधर, समझ में आ रहा है सब लोग? r1 इज इक्वल टू r3 है करके डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ गया? 0, हाफ इनटू 0, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है। अभी मेरे को कौन बताएगा? पहले कौन बताएगा? अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आया तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलने का कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलने का? बोलो बोलो बोलो। यस अभिषेक, यस, इट इज टू बी कॉल्ड एज व्हाट? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो लिखने का A is a singular matrix। समझा सबको? ओके, ये हो गया अपना कौन सा? थर्ड का फर्स्ट। अभी थर्ड का सेकंड अपने को दिखाया जाएगा। थर्ड का सेकंड एग्जांपल। ओके, थर्ड का सेकंड एग्जांपल लिखो रे सब लोग। हाँ, थर्ड का सेकंड 2.1 थर्ड का सेकंड देखते हैं क्या है ये, सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, फटाफट देखिए। सब लोग लिखना, मेरे साथ में ही लिखना। ओके, उसको मैट्रिक्स बी बोलेंगे। मैट्रिक्स बी क्या होता है? 505 199 100 and 699 105। ओके, चलो इसके बारे में जरा बात करते हैं। सब लोग लिख लेना, मैं इधर लिख रहा हूं, डोंट वरी। 2.1 थर्ड एग्जांपल का सेकंड। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। डिटरमिनेंट b is equal to डिटरमिनेंट 505 199 100 699 105। लिखा सब नहीं? लिखने को स्टार्ट करना। एकदम एकदम सिंपल थिंग्स आर गोइंग ऑन। ओके, चलो अभी इसमें भी देख, ऐसे बोलेगा ना तो 5 से जो मल्टीप्लाई किया था ना हम लोगों ने, 5 लेके बाद में इसका मल्टीप्लाई। लेकिन सोचो ना, 99 into 105, आप देख, अपने को तो 9 का टेबल भी नहीं आता है। 99 into 105 तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो इससे अच्छा है कि और भी इधर प्रॉपर्टी यूज होता है क्या, देखते हैं। आइडिया करूंगा, आइडिया देखो चलो। ये ना मैं C3 माइनस C2 करूंगा, C3 माइनस C2। देखो ये थर्ड कॉलम और थर्ड कॉलम में से सेकंड कॉलम माइनस करेंगे तो ये नंबर्स छोटे हो जाएंगे ना। जरा देखो C2 माइनस C3 माइनस C2 किया तो क्या आता है? 516 वैसे ही रहेगा, 0 99 99 भी वैसे ही रहेगा। अभी ये देखो सब लोग देखो और लिखो, 5 माइनस 0 इज 5, 100 माइनस 99 इज 1, 105 माइनस 99 इज 6। कैसे लगता? 516 516 याद है मैंने बोला था C1 is equal to C3 आ गया। दो कॉलम आइडेंटिकल रहेंगे तो उसका क्या बोलते हैं हम लोग? उसको क्या बोलते हैं? उसका वैल्यू क्या आएगा? 0। प्रॉपर्टी है अपना डिटरमिनेंट B will be equal to 0। तो naturally matrix B is going to be what? Singular matrix। समझ में आ रहा है सबको? मैट्रिक्स B is what matrix? Singular matrix। ओके, आगे जाते हैं। अभी और 2 क्वेश्चंस बाकी है ये थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन का 2 बाकी है, उसमें से ना एक मैं काम करता हूं। थर्ड का थर्ड जो है ना वो होमवर्क में दे रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन का देखो अभी वो स्क्रीन पे आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है ना वो मैं होमवर्क देने जा रहा हूं। होमवर्क में वो एक करने का, लेकिन थर्ड का फोर्थ वाला सॉल्व करेंगे। चलो लिखना सब लोग, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट फटाफट लिख लेना। 2.1 चल रहे, एकदम सिंपल सा एक्सरसाइज है। टोटल 4 क्वेश्चंस है, उसमें से थर्ड क्वेश्चन में 4 सब क्वेश्चन थे तो सॉल्व करने जा रहे हैं। हाँ चलो
थर्ड का फोर्थ स्क्रीन पे दिखाना सब लोगों ने। बी बोलेंगे, बीच वाले को सी बोलना। 7 5 -4 एंड 7। चलो 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 स्टार्ट करेंगे सॉल्व करने को सब लोग। चलो मेरे साथ में लिखना रे, डिटर्मिनेंट डी है ना, मेरे साथ में लिख रहे हैं ना सब लोग। हाँ क्या आएगा, डिटर्मिनेंट 7 5 -4 7। ओके तुम लोग खुद से सॉल्व करो, चलो सब लोग खुद से सॉल्व करो। ये क्या आएगा, 7 × 7। इसमें प्रॉपर्टी यूज करने का जरूरत नहीं, एकदम छोटा सा सिंपल सा है। 7 × 7 and -4 × 5, 7 7s are 49 minus minus plus 20 मतलब क्या आएगा 69। अब ये 69 नॉट इक्वल टू 0 है ना रे, सबको मालूम है ना, नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगुलर बोलते हैं कि नॉन सिंगुलर बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मिस्टर दीपेश। यस वेरी गुड, गुड आंसर। ओके देयरफॉर D is a non-singular matrix। समझा सबको? जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट होमवर्क में दिया है, सब लोग करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जब मेरा रहेगा उसके पहले सॉल्व कर देना। ओके ये आ गया कौन सा, थर्ड क्वेश्चन। अभी फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अभी सब लोग जरा फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आओ। ओके फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में ना उल्टा, ये देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड के if the following matrices are singular। अरे सिंगुलर मैट्रिक्स दे दिया बच्चे लोग, फटाफट बोलो। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स दे दिया इसका मतलब क्या हुआ, उसका डिटर्मिनेंट जो है उसका वैल्यू ऑलरेडी दे दिया 0, तो 0 लेके के का वैल्यू फाइंड आउट करने का है। समझा सबको? ओके देखो कौन सा, फोर्थ वाला ना, 0 मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 लेने का तो के का वैल्यू मिल जाएगा। तो उसमें मेरे को ना टोटल 3 एग्जांपल दिख रहे हैं, उसमें से हम लोग फर्स्ट वाला करेंगे और थर्ड वाला करेंगे। फोर्थ का सेकंड जो है वो होमवर्क करने कैसे, देखो प्रॉमिस दिया मेरे को, प्रॉमिस तोड़ना मत। यू आर ऑल गुड स्टूडेंट्स, जब मैंने बोला फोर्थ का सेकंड करने का है तो करने का है। ओके स्क्रीन पे दिख रहा है, फोर्थ का सेकंड होमवर्क में दिया मैंने, फोर्थ का फर्स्ट एंड फोर्थ का थर्ड करने जा। पहले फोर्थ का फर्स्ट, चलो लिख लो सब लोग लिख लो, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। चलो चलो फटाफट लिख लो बच्चे लोग, एकदम सिंपल सिंपल थिंग्स हो रहा है इधर। ओके फोर्थ का फर्स्ट, उसको ए बोलेंगे, क्या है 7 3 -2k, सब लोग लिख लो, हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। ओके अभी लिखना, इधर उन्होंने ये सिंगुलर करके दिया था ना, देखना एज मैट्रिक्स ए, सब लोग लिखना इज सिंगुलर, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0। सिंगुलर मैट्रिक्स है करके डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0। Therefore क्या आएगा, डिटर्मिनेंट 7 3 -2k is equal to 0। चलो आगे जाएंगे, ये क्या आएगा 7k माइनस माइनस प्लस 6 is equal to 0। सॉल्व कर रहे हैं ना सब लोग, मेरे साथ में ये लिखना 7k plus 6 is equal to 0। Okay, please show the problem on the screen। Yes, thank you। कितना है आंसर, आंसर क्या है देखो जरा, 7k is equal to -6। ऐसे लगता k is equal to -6/7 है, समझ में आ रहा है सबको? k कितना मिला, -6/7 मिला। ओके तो ये फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अभी फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट तो मैंने होमवर्क में दिया, थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। सी लेना उसको, सब लोग लिखना सी इज इक्वल टू k -1 2 3। थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ मत करना,
3 1 2 1 minus 2 4। समझा क्या सब लोग? अब ये भी सिंगुलर मैट्रिक्स दिया है, लिखना C as C is a singular matrix comma determinant C is equal to 0। समझा? determinant C is equal to 0 मतलब क्या है? determinant k minus 1 2 3 3 1 2 1 minus 2 4 is equal to 0। चलो तो अभी क्या होता है? अभी सबको सॉल्व करने को आता है ना? यू आर एक्सपर्ट इन दैट। चलो स्टार्ट। k minus 1 लिया तो k minus 1 का रो, k minus 1 का कॉलम छूट गया, तो क्या बचा? 1 2 minus 2 4 बचा, करेक्ट? बाद में मिडिल वाले का साइन चेंज करने का सबको मालूम है, मिडिल वाले का साइन चेंज करने का -2, तो 2 का रो 2 का कॉलम गया, ये क्या आता है? 3 2 1 4। समझा? +3, ओके, +3 सेम साइन रहेगा। 3 का रो 3 का कॉलम गया, ये आता है 3 1 1 -2। चलो सब लोग फटाफट लिख लो। Okay, you are giving answers, proper answers are given. That means you are following the things. Don't worry, everything is simple here. Let us start now. K minus 1 as it is. ये क्या आता है जरा बताना, ये जरा मैं डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अभी थोड़े बड़े हो गए ना हम लोग, मैच्योरिटी लेवल दिखा नहीं था आपने। ओके, तो क्या आएगा? 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 4, राइट? बाद में -2 इंटू ये क्या है? 12 -2, बाद में ये क्या है? +3, ओके, +3 3 क्या है? ये क्या है? -6 -1 इज इक्वल टू 0। इधर इक्वल टू 0 लिखना भूल गया मैं, तुम लोग लिखो बराबर से, परफेक्ट लिखने का सब लोग। अभी देख क्या आ गया? 8 है ना, 8k -8, ये 12 -2 मतलब 10 आता है, 10 2 -20, और ये -21 ना, -7 into 3 मतलब -21 इज इक्वल टू 0। कभी कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट कैलकुलेशन आ सकता है, नॉट वेरी डिफिकल्ट, ठीक है? जरा ध्यान देने का, 8k -8 ये क्या है? 10 2 20, ये -21, ये क्या आता है? देखिए 8k -41 -8 मतलब -49। सब लोग खुद से सॉल्व करो, आराम से समझ में आ जाए। 49/8 विल बी द आंसर। समझा? ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन का कौन सा पार्ट हो गया? ये थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ का सेकंड पार्ट हम लोगों ने किसके लिए लिया? होमवर्क के लिए लिया। अभी थोड़ा सा पीछे जाते हैं और स्क्रीन पे जरा 2.1 दिखाना प्लीज। 2.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं हम। स्क्रीन पे दिखेगा सेकंड क्वेश्चन, इसमें ना क्लासिफाई करने का है। ओके, कौन कौन सा टाइप है वो क्लासिफाई करने का है, सब लोग देख लेना स्क्रीन पे। 2.1 का सेकंड एग्जांपल करने जा रहे हैं हम लोग। ओके, 2.1 का कौन सा एग्जांपल कर रहे हैं? सेकंड एग्जांपल। चलो फटाफट खत्म करते हैं 2.1 का सेकंड एग्जांपल। क्या बोले? क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सब कुछ अभी आज ही पढ़ा है हमने। चलो हम लोग ना ओरली डिस्कस करेंगे एक एक करके, तुम लोग भी देखना, स्क्रीन पे देखना कैसा कैसा है तुम लोग। चलो पहले वाले के बारे में क्या लगता है? सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट वन देखो जरा, सब लोग देख रहे हैं? ऑल द एलिमेंट्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वेरी गुड अभिषेक, वंस अगेन। Yes, Shravan is also giving, Kushi is also giving the answer. चलो चलो सब लोग आंसर दे रहे हैं, मजा आ रहा है। Yes, okay. तो क्या है कि एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल 0 है, मतलब पहला वाला कौन सा हो गया? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
सेकेंड वाला, चलो चलो सब लोग आप ओके, बी ऑन योर टोज फॉर गिविंग द आंसर्स। देख रहे सब लोग, एक ही कॉलम है, कौन बोलेगा? ये सब लोग बोलो ना यार, एक ही कॉलम है। या दक्षित बोल रहे हैं इट इज कॉलम मैट्रिक्स, दक्षित दिवेचा, वेरी गुड, इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स। और उसके नेक्स्ट वाला दीपेश लाड, तू भी बोला कॉलम मैट्रिक्स, वेरी गुड, ओके। और नेक्स्ट वाला रो मैट्रिक्स है, अभिषेक, वेरी गुड। अरे सब लोग आंसर दे रहे हैं, यस, मजा आ रहा है, ओके, रो मैट्रिक्स है। बाद में ये क्या है, फोर्थ वाला मेरे को कौन बोलेगा? फोर्थ वाला, चलो जरा सोचो, सोचो जरा, ओके। फोर्थ वाला देख क्या है, फोर्थ वाले में स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, ऐसे नहीं लगता? फोर्थ वाला स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर, यस, निखिलेश पुडेकर बोल रहा है स्केलर मैट्रिक्स, वेरी सही जवाब, ओके। क्यों क्यों स्केलर मैट्रिक्स? स्क्वायर भी है, नॉन डायगोनल जीरो है और डायगोनल एलिमेंट सेम है, इसके लिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट वाला, चलो फिफ्थ वाला कौन बताएगा? पहले बताएगा दक्षित दिवेचा बता रहा है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यस, अभिषेक भी बता रहा है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, श्रवण बता रहा है, निखिलेश बता रहा है। अरे वाह, आज सब लोग एकदम मूड में है। खुशी सिंह, यस, वेरी गुड, ओके। एलिमेंट्स अबव द डायगोनल जीरो मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। बाद में हाँ, बोलो बोलो बोलो, 6 के बारे में कौन बात करेगा? 6 के बारे में दक्षित दिवेचा बोल रहा है डायगोनल मैट्रिक्स, नीलम चौहान, यस, वेरी गुड, वो भी बोल रही है इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाई डायगोनल मैट्रिक्स? बिकॉज़ ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में कुछ पता नहीं चला तो भी चलता है, श्रवण भी बोल रहे हैं। व्हाट अबाउट द सेवेंथ वन माय डियर फ्रेंड्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सुषमा यादव बोल रही है, विशाखा पवार बोल रही है, श्रवण बोल रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वेरी गुड, दीपेश लाड भी बोल रहा है, सब लोग बोल रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। व्हाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर व्हाट? ऑल वन, तो उसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वेरी गुड, अवधूत पितरे भी बोला, ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है करके। समझ में आ रहा है सबको? ओके, सब लोग समझ में आ रहा है ना? अभी ना जस्ट अ फ्यू मिनट्स मोर फॉर द लेक्चर टुडे, ओके। अभी और एक छोटा सा टाइप इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, ओके। अभी एक्सरसाइज का 3 क्वेश्चंस हो गया, ओके। अभी आगे जाएंगे, लिखना कंसेप्ट है, कंसेप्ट लिखना, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। लास्ट कंसेप्ट फॉर द डे जिसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। लिखने का ट्रांसपोज, इट इज नॉट अ टाइप, जैसे डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स था वैसे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे, ओके। और एक दो एग्जांपल देके आज का लेक्चर पूरा कर देते। समझ में आया ना सबको? मजा आया ना? फटाफट आज एक 7-8 लोगों ने फटाफट आंसर दिया। नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे हम लोग, सब लोग फटाफट आंसर देने का, समझा? कोशिश करो, चाहे थोड़ा सा गलत इधर उधर हो सकता है लेकिन कोशिश करनी। अभी ट्रांसपोज के बारे में लिखो। अभी ट्रांसपोज है ना, ट्रांसपोज उसमें खास ये स्क्वायर मैट्रिक्स का नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स, यश परिवार बोल रहे हैं यस, ये स्क्वायर मैट्रिक्स वाला टाइप नहीं है। ये कौन सा भी मैट्रिक्स के लिए आ सकता है। लिखना फॉर एनी मैट्रिक्स ए, सब लोग लिखेंगे, हाँ, फॉर एनी मैट्रिक्स कैपिटल ए, if we interchange the rows and columns, if we interchange the rows and columns, then the new matrix that we get is called transpose of matrix A. Transpose of matrix A, which is denoted by A dash। देखो कैसा डिनोट करते हैं, सब लोग देखना रहे बराबर से। A dash और A raised to capital T ऐसे लिखते हैं, ट्रांसपोज के लिए T लिखते हैं। इधर A dash लिखने का या A ट्रांसपोज ऐसा लिखने का।
अभी इसके बारे में भी जरा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देते हैं, एक 2-3 एग्जाम्पल बिफोर वी क्लोज फॉर टुडे। ओके, आज एकदम बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैथ्स 1 आज स्टार्ट हो गया अपना, और मैथ्स 1 में सब लोग इंटरेस्ट बता रहे हैं, सब लोग आंसर दे रहे हैं, अलग से बुक बनाने का है सबको, होमवर्क जो 2-3 ही क्वेश्चंस दिया वो होमवर्क करके लाने का है। ओके, चलो अभी 2 एग्जांपल दे रहे हैं। मैट्रिक्स से 5 2 3 -1 2 7 देख रहे सब लोग, ये हो गया मैट्रिक्स ए, सब लोग देख रहा। अभी ए डैश क्या है, ए ट्रांसपोज ए रेज़ टू टी लिखेंगे, कैसे आएगा रे? क्या बोला मैंने? इफ वी इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करना है, मतलब क्या? सब लोग जरा देखना, बात में लिखना, एकदम सिंपल है। फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम। समझ में आ रहा है? ये हो गया अपना ट्रांसपोज। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम हो गया। ट्रांसपोज के बारे में गम्मत बताता हूं तेरे को, मजा बताता हूं। इसका ऑर्डर क्या है? 2 into 3, 2 rows 3 columns। इसका ऑर्डर बराबर 3 into 2 होगा, उल्टा होगा ना, रोज का कॉलम, कॉलम्स का रोज। फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम। समझा सबको? ओके, ये हो गया एक एग्जांपल। और एक एग्जांपल बताता हूं बिफोर वी क्लोज फॉर द डे। चलो लिखना, मैट्रिक्स बी 5 -1 2 4, इसका ऑर्डर है 2 into 2। यस, हु विल टेल मी बी डैश, और उसको हम लोग बी ट्रांसपोज बोलते हैं। कोई बता पाएगा क्या आएगा? देखो फर्स्ट रो में फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, करेक्ट? सब लोग देख रहे हैं ना, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, मतलब ये 5 -1 ऐसे आएगा। सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम, 2 4 ऐसे आएगा। अभी देख, ये स्क्वायर मैट्रिक्स था ना 2 into 2, तो इसका भी ऑर्डर, ट्रांसपोज का ऑर्डर भी 2 into 2 ही बचा। गेटिंग इट और नॉट? सब लोगों को बराबर से समझ में आ रहा है ना? देखो वंस अगेन, देखो ए रोज का कॉलम्स हो गया, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम। इधर भी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम। समझ में आया सबको? अंजनी यादव भी बोल रही है समझ में आ गया। ओके, तो ट्रांसपोज क्या है समझा सब लोगों ने? तो नाउ बिफोर वी क्लोज फॉर द डे, एक फास्ट रिवीजन जैसा ब्रश थ्रू करेंगे। सब लोग ध्यान देना, दीपेश तू भी ध्यान देना। क्या है, पहले से हम लोगों ने मैट्रिक्स क्या है समझा है। 1 मैट्रिक्स, 2 और मोर मैट्रिसेस, ऐसे बोला हम लोगों ने। बाद में मैट्रिक्स का मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। उसका जो एलिमेंट्स है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरुआत में बात करने जा रहे हैं। एवरीथिंग विल बी properly explained, don't worry about it. Okay, हाँ, तो elements of the matrix, small letters, matrices in capital letters। बाद में हम लोगों ने types of matrices introduce किया। नंबर 1 क्या था? रो मैट्रिक्स, only one row। कॉलम मैट्रिक्स, only one column। बाद में हम लोग बोले रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम रहेगा तो स्क्वायर, m इज नॉट इक्वल टू n रहेगा तो रेक्टेंगुलर। बट स्क्वायर मैट्रिसेस का डिफरेंट, आज तुम लोगों ने जो आंसर्स दिया ना वो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मेरा तो मन खुश हो गया यार, फटाफट आंसर दिया, इतना अच्छी समझदारी तुम लोगों ने आज दिखाई ना, हैट्स ऑफ टू यू। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या क्या रहते हैं, बाद में वो अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बाद में यार हम लोगों ने वो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस इंट्रोड्यूस किया था आज लास्ट ईयर का, उसका प्रॉपर्टीज भी तुम लोगों को समझा दिया। दिल खुश हो गया होगा तुम्हारा ना निखिलेश? दिल खुश है। 2.1 मधला क्वेश्चन 1, यस इज सेइंग काय करायचं, उसको कुछ मत करना। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग नेक्स्ट टाइम सॉल्व करने वाले हैं पक्का, डोंट वरी अबाउट इट। मेरे को बराबर याद रहेगा, मैं भूलूंगा नहीं, लेकिन फिर भी भूल गया तो नेक्स्ट लेक्चर में निखिलेश मेरे को याद दिला। ओके, हम लोग डेफिनेटली करने जा रहे हैं। बाद में तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर आए, डिटर्मिनेंट का वैल्यू मैंने बोला ना, डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट ओनली फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 रहा तो सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 रहा तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। वो भी उसका भी दो टाइप का क्वेश्चंस किया हम लोगों। मैट्रिक्स दे दिया, पूछा सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है,
डिटर्मिनेंट निकाला, इक्वल टू 0 है तो सिंगुलर, नॉट इक्वल टू 0 है तो नॉन सिंगुलर। समझा? बाद में और एक टाइप किया आज हम लोगों ने, मस्त टाइप था। ओके, कोई भी मैट्रिक्स दिया और बोला कि वो सिंगुलर है, इसका मतलब उसका वैल्यू डिटर्मिनेंट का इक्वल टू 0 लिया और उसका जो वैल्यू है के वगैरह का वैल्यू वो भी निकाला हम लोग। किया कि नहीं ऐसा? हाँ, खुश ना सब लोग? अभी घर जाके मस्त एकदम खाना पीना खाओ, टाइम थोड़ा सा निकाल के रिवाइज कर दो। 2 ही क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए, तो 2 क्वेश्चन तुम लोग कंप्लीट कर देना। समझा? ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद दोस 2 क्वेश्चंस का होमवर्क एंड प्रॉपर रिवीजन करके आना। आगे वाला एकदम इंटरेस्टिंग पार्ट समझाने जा रहे हैं हम लोग। यस खुशी? ओके, बाय बाय। हाँ यस लक्षित, तू भी अटेंड किया ना, मजा आया। ओके बाय एवरीवन। ओके